امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیلزاد اہم دورے پر پاکستان پہنچ گئے۔ وزیر خارجہ اور سیکرٹری خارجہ سے ملاقاتیں، طالبان کے ساتھ بات چیت میں پیش رفت سے آگاہ کیا۔ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ افغان مفاہمتی عمل میں نیک نیتی سے تعاون جاری رکھیں گے۔ اسلام آباد سے دیکھیے ظہیر علی کی رپورٹ۔ افغان امن عمل میں کیا پیش رفت ہوئی، آگے کیسے بڑھنا ہے؟ پاکستانی قیادت کو اعتماد میں لینے اور مشاورت کے لیے امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیلزاد کی اسلام آباد آمد۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے اہم ملاقات، سیکرٹری خارجہ سے وفود کی سطح پر مذاکرات۔ افغانستان کے لیے امریکہ کے نمائندہ خصوصی زلمے خلیلزاد 2 روزہ دورے پر پاکستان آئے ہیں۔ وزارت خارجہ میں وفود کی سطح پر مذاکرات میں سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوعہ نے پاکستانی وفد کی قیادت کی۔ افغان امن عمل اور خطے کی صورتحال پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔ امریکی وفد نے دوحہ میں طالبان کے ساتھ ہونے والے مذاکرات میں اب تک کی پیش رفت سے آگاہ کیا۔ زلمے خلیلزاد نے وفد کے ہمراہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے بھی ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان افغان مفاہمتی عمل سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے انٹرا افغان مذاکرات سے متعلق پیش رفت کو سراہا۔ کہا افغانیوں کے درمیان مذاکرات کا انعقاد افغان مفاہمتی عمل کا اہم جزو ہے۔ افغانستان میں امن و استحکام پاکستان سمیت پورے خطے کے مفاد میں ہے۔ پاکستان افغانستان میں سیاسی مصالحت کے لیے نیک نیتی سے تعاون جاری رکھے گا۔ وزیر خزانہ نے صاف کہہ دیا کہ IMF کے ساتھ ڈالر کی قدر پر کوئی بات نہیں ہوئی، معیشت کے بارے میں افواہیں نہ پھیلائی جائیں۔ یہ بھی کہا کہ IMF نے کریلا 300 روپے میں بیچنے کا ہدف نہیں دیا۔ اشرف خان کی رپورٹ دیکھیے۔ وفاقی وزیر خزانہ اسد عمر کا اسٹاک ایکسچینج میں ویڈیو لنک سے خطاب، کہا پاکستان 300 ارب ڈالر کی معیشت ہے، لیکن ہماری کیپٹل مارکیٹ میں اس طرح سے سرمایہ کاری نہیں ہو رہی۔ جو مسائل کئی دہائیوں سے تھے ان کو حل کر رہے ہیں۔ ہم نے بہت بڑے بڑے فیصلے کیے ہیں، بڑے مشکل فیصلے کیے ہیں، وہ فیصلے کیے ہیں حکومت نے جو ڈیکیڈ سے چل رہے تھے اور سب بولتے تھے کہ یہ ہونا چاہیے، کوئی کرنے کو تیار نہیں ہوتا تھا۔ اسد عمر اپنے خطاب میں بولے IMF سے مذاکرات میں ایکسچینج ریٹ کبھی زیر بحث نہیں رہا۔ پہلے روپے کی قدر کو مصنوعی طور پر روک کر رکھا گیا۔ معیشت سے متعلق افواہیں پھیلانے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ کس دن اخبار پہ خبر لگ جاتی ہے اسد عمر نے کہہ دیا 160 کا ہو گیا، IMF نے کہہ دیا 180 کا ہو جائے گا ڈالر، پھر اگلے دن خبر لگ جاتی ہے IMF نے مطالبہ کیا ہے کہ کریلے جو ہیں کم سے کم 350 روپے کلو بکنے چاہیے۔ خدا کا واسطہ سٹاپ سپریڈنگ دیز ریومرز۔ IMF کے ساتھ ڈسکشنز کے اندر کوئی مطالبہ بھی نہیں ہے کہ کوئی ایکسچینج ریٹ کیا ہونا چاہیے۔ وفاقی وزیر خزانہ نے عوام سے بھی کہا کہ ڈالر خرید کر اپنا پیسہ برباد نہ کریں۔ معاشی بحالی کے لیے جو اقدامات کیے ہیں اس کے اثرات جلد نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ کیمرامین شاہد بلوچ کے ساتھ اشرف خان، سما، کراچی۔ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی حکومت کو پیشکش، کہا کہ پاکستان کی بگڑتی معیشت ٹھیک کرنے کو تیار ہوں۔ سما سے گفتگو میں کہا کانٹریکٹ کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا ملازم بن جاؤں۔ ریونیو کے وزیر مملکت حماد اظہر کا جوابی وار، اسحاق ڈار کو اقتصادی غارت گرد قرار دے دیا۔ سوال کیا کیا انہیں معیشت تباہ کرنے کا ٹھیکہ دے دیں؟ پاکستان کی معیشت پر کڑا وقت۔ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار موقع پر چوکا لگانے میدان میں آ گئے۔ یہ بالکل غیر ذمہ داری اور ویژن لیس اور کوئی پلاننگ نہیں، کو کچھ نہیں، اور یہ ہٹ اینڈ ٹرائل سے چل رہے ہیں۔ یہ کام اگر ان سے نہیں ہو رہا تو مجھے یہ کام دیں، میں ان کو کام کر کے دے سکتا ہوں۔ مجھے کوئی ملازمت کا شوق نہیں ہے، میں تو جب الحمدللہ 4-5 دفعہ وزیر رہا ہوں فیڈرل گورنمنٹ میں۔ وزیر مملکت برائے ریونیو حماد اظہر نے اسحاق ڈار کو کرارا جواب دیا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے کرتے ہیں۔ جو پچھلے 4-5 سال انہوں نے اپنے دور میں روپے کو مضبوط رکھا، 24 ارب ڈالر بیرون ملک سے ادھار لے کے آپ کی کرنسی مارکیٹس کے اندر پھینکا اور روپے کی قدر کو اوپر رکھا۔ خسارے بھی بڑھتے رہے، روپیہ بھی اوپر رہا، آپ کی معیشت جو ہے وہ تباہ حالی کا شکار ہو گئی۔ پاکستان میں اپنے خلاف بننے والے کیسز کا سامنا کیوں نہیں کر رہے؟ سما کے سوال پر جواب دیتے ہوئے اسحاق ڈار نے کہا کہ انہیں جیسے ہی ڈاکٹرز اجازت دیں گے وہ حاضر ہو جائیں گے۔ میرا سروائکل کا ایشو میڈیکل چل رہا ہے، وہ جب مجھے وہ اس میں ڈاکٹرز الاؤ کریں گے میں حاضر ہوں جواب دینے کے لیے۔ میرا کیس جھوٹا ہے، میں نے کبھی 35 سال میں 1 سال بھی ریٹرن فائل یعنی مس نہیں کی۔ حکومت اور اپوزیشن کی تو میں اپنی جگہ، لیکن مہنگائی کی چکی میں پستے عوام دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ ان کے مسائل کون حل کرے گا۔ اب آپ کو بتائیں، نون لیگ کی ترجمان نے دعویٰ کیا ہے کہ نیب نے شہباز شریف کے گھر پر چھاپا مارا ہے، بغیر وارنٹ کارروائی کی گئی ہے۔
आपको बताते चलें, नून लीग की तर्जुमान ने दावा किया है कि नैब ने शहबाज शरीफ के घर पर छापा मारा है और बगैर वारंट कार्रवाई की गई है। मजीद जानेंगे आरिफ मलिक से। आरिफ मलिक, बताइएगा क्या कहना है नून लीग की तर्जुमान का? जी, नून लीग के तर्जुमान का कहना है कि नैब ने बगैर वारंट के जो है शहबाज शरीफ के घर पर छापा मारा है। उस वक्त शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज शरीफ दोनों घर पर मौजूद थे। तलाशी लेने की कोशिश की गई है। 7 से 8 अफराद पर मुश्तमिल ये टीम थी जिन्होंने अंदर घर में घुसने की कोशिश की। जब हमने वारंट मांगने की कोशिश की कि तलाशी के वारंट हमें दिखाए, तो वो दिखाए नहीं गए और बाद में हमें ज़बरदस्ती जो है वो अंदर दाखिल होने की कोशिश की जाती रही। सिक्योरिटी गार्ड्स को जो है वो धक्कम पेल की गई, अंदर जाने की कोशिश की गई। कहा जा रहा था कि हमें तलाशी लेनी है। जो आशियाना और साफ पानी केस के हवाले से और एक शुगर मिल केस के हवाले से मजीद तफ्तीश करनी थी, इस हवाले से वो जानना चाह रहे थे कि घर के अंदर क्या पैसे छुपाए हुए हैं या कुछ नवादरात, इस तरह की बातें वो कर रहे थे। ये तर्जुमान का दावा है कि ये 7 से 8 अफराद थे जो सिक्योरिटी गार्ड्स को धक्कम पेल करके अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उस वक्त हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ अंदर ही मौजूद थे और हमजा शहबाज बाहर आए, लेकिन बाहर आते सारी सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन्हें अंदर कर दिया और बाद में ये कहा कि हम वारंट के बगैर आपके सामने पेश नहीं होंगे और आपको हम घर की तलाशी लेने नहीं देंगे। तो अब वहाँ पर कारकुन भी जमा होने शुरू हो गए हैं और वहाँ पर हमजा शहबाज वहाँ पे घर के बाहर खड़े हैं। लेकिन ताहाल अभी नून लीग की तर्जुमान का ये कहना है कि अभी ताहाल वहाँ पे नैब के लोग वहाँ पर मौजूद हैं और वो अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें 7 से 8 लोग हैं और दोबारा उन्होंने अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शहबाज शरीफ अंदर ही मौजूद है, हमजा शहबाज भी वहाँ पर मौजूद है। बगैर वारंट के हम इन्हें अंदर जाने नहीं देंगे। जब हमारे इनके वारंट के पास नहीं है तो उसके बगैर हम तलाशी नहीं देंगे। तो अभी ये सूरत हाल वहाँ पर। ठीक है आरिफ मलिक, अब हमारे साथ ही रहेगा। मरियम औरंगजेब साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं। मरियम साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, आपकी जानिब से दावा किया गया कि नैब की जानिब से 7 से 8 अफराद पर मुश्तमिल ये टीम है जो घर में पहुंची है और बगैर वारंट कार्रवाई कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल 96H मॉडल टाउन जो रिहाइश गाह है हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब की, उधर नैब में बगैर किसी इतला के, बगैर किसी वारंट के, बगैर किसी इंफॉर्मेशन के ये छापा मारा है। क्या शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज दहशत गर्द है? जब नैब के पास 1 रुपए की करप्शन साबित नहीं हुई, फ्रस्ट्रेशन का ये आलम है कि दिन दहाड़े लोगों के घरों पे छापे और डाके मार रहे हैं। ये नैब की टीम है कि कोई डाकुओं की टीम है? कोई इतला नहीं दी गई, किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई और उनको यूं छापा मारा गया उनकी अपनी प्राइवेट रिहाइश गाह के ऊपर। फ्रस्ट्रेशन का ये आलम है कि जब किसी किस्म का इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ तो एसिड बियॉन्ड मीन्स का बनाकर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की जा रही है और इस वक्त ये हथकंडा इस्तेमाल किया जा रहा है कि उनकी प्राइवेट रिहाइश गाह के ऊपर छापा मारा गया है बगैर किसी इन्फॉर्मेशन के। ठीक है मरियम साहिबा, बताइएगा कि अभी भी वहाँ पे ये कार्रवाई जारी है? जी, अभी भी जारी है और शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज साहब वहाँ मौजूद हैं। मुझे सिर्फ सवाल ये पूछना है नैब से और मौजूदा हुकूमत से कि क्या हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ दहशत गर्द है? क्या सबूत है नैब के पास? किस वजह से ये मारा गया है? किस वजह से? क्या मरियम साहिबा, किसकी गिरफ्तारी के लिए? हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा गया है या शहबाज शरीफ? किस बात पे गिरफ्तारी? एक करप्शन का सबूत नैब के पास नहीं है। हर तारीख के ऊपर हमजा शहबाज साहब पेश होते रहे हैं। बीमार बच्ची के बावजूद हमजा शहबाज लंदन से आकर नैब के आगे पेश होते रहे। शहबाज शरीफ को इन्होंने अपनी कस्टडी में रखा इंक्वायरी के लिए, उनको जेल में रखा। 1 रुपए की करप्शन साबित नहीं हो सकी। किस बात की गिरफ्तारी? हाँ, सियासी इंतकाम की गिरफ्तारी हो, इमरान खान का ज़हनी हालत अगर ये हो तो उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकती। अच्छा मरियम साहिबा, सिक्योरिटी गार्ड्स को बताया जा रहा है कि धक्कम पेल करके एंटर हुए हैं, इस हवाले से क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, दहशत गर्दों की तरह एंटर हुए हैं नैब की टीम, बगैर किसी इतला के, बगैर किसी इंफॉर्मेशन के। जैसे घरों में दहशत गर्द एंटर होते हैं, वो नैब की टीम का रवैया। अच्छा मरियम औरंगजेब साहिबा, ये भी बताइएगा कि किसके लिए छापा मारा गया है, क्योंकि नवाज शरीफ की तो सजा मुअत्तल की गई है उनकी सेहत की वजह से, तो अब किस हवाले से ये कार्रवाई करने पहुंचे थे नैब वाले? देखिए, इसलिए छापा मारा गया है क्योंकि नैब की टीम बेबस हो चुकी है। नैब के पास कोई सबूत नहीं है। नैब के पास 1 रुपए की करप्शन का सबूत नहीं निकला, किसी किस्म का जो इल्जाम लगाए गए उसका सबूत नहीं निकला और अब इस होछे हथकंडों पर उतर आए हैं कि लोगों के घरों में दिन दहाड़े डाके मार। जी बहुत शुक्रिया मरियम औरंगजेब साहिबा, आप हमें वक्त दे रही थी। आपको पता चले नून लीग की तर्जुमान ने दावा किया है कि नैब ने शहबाज शरीफ के घर पर छापा मारा है और बगैर वारंट कार्रवाई की गई है, कोई इत्तला नहीं दी गई और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ घर में ही मौजूद थे जब ये नैब कार्रवाई कर रहा था और 3 से 4 सिक्योरिटी गार्ड्स पर मुश्तमिल ये टीम थी जो कि पहुंची नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के घर और बगैर वारंट उनका कहना है कि कार्रवाई की गई। आरिफ मलिक से जानेंगे। आरिफ मलिक, ये बताएगा
इस वक्त क्या सूरत हाल है और नून लीग के कौन कौन से कायदीन वहाँ मौजूद हैं? ये अभी नून लीग के जो सरबराह हैं, जो सदर हैं शहबाज शरीफ, वो घर के अंदर मौजूद थे। हमजा शहबाज जो लीडर है पंजाब में, वो यहाँ पर मौजूद थे, क्योंकि ये अचानक ही नैब ने जो है उनके छापा मारा है, तो वहाँ पर सिर्फ घर के अंदर हमजा शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। और जब सिक्योरिटी गार्ड्स को ये कहा गया कि हम नैब की टीम है, हम अंदर दाखिल होना चाहते हैं, हमें डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड है, पता चला कि डॉक्यूमेंट्स कुछ एस्टेंट बियॉन्ड केस के हवाले से डॉक्यूमेंट्स उनके घर के अंदर मौजूद है जो हमें नहीं मिल पा रहे, हम वो लेना चाह रहे हैं। तो इस हवाले से उन्होंने एक कॉल भी हमजा शहबाज को की कि नैब की टीम जो है बाहर खड़ी है और इस सिलसिले में वो आपसे मिलना चाह रही है। लेकिन हमजा शहबाज ने उनकी कॉल जो है सुनी और फिर बाद में कहा कि आपके पास वारंट है क्या? उन्होंने कहा कि हम वारंट लेकर आए हैं, हम आपको दिखा देते हैं। उन्होंने कहा हमें पहले कोई इत्तला नहीं दी गई। हाई कोर्ट की जानिब से भी ये कहा गया था कि अगर हमजा शहबाज को गिरफ्तार करना है तो पहले उसे बताना होगा, क्या एक हफ्ते पहले उसे बताना होगा कि आया कि आप उसे गिरफ्तार करना जा रहे हैं। लेकिन जब इस तरह की सूरत पैदा हुई तो हमजा शहबाज और शहबाज वहाँ पर मौजूद थे। सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन्हें रोका, सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ भी धक्कम पेल हुई, अंदर दाखिल होने की कोशिश की गई। ये भी कहा गया कि उनकी खवातीन अंदर मौजूद हैं, इस तरह की हरकत ना की जाए। लेकिन अभी भी ताहाल सूरत हाल यही है कि वहाँ पर नैब की टीम वहाँ पर मौजूद है, हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ वहाँ पर मौजूद है। सिक्योरिटी गार्ड्स ने मुकम्मल हिसार कर लिया घर का और अंदर दाखिल होने के उन्हें नहीं दिया जा रहा। नैब की टीम वहाँ पर मौजूद जरूर है। मजीद नैब की टीम ने मजीद नफरी वहाँ पर बुला ली है ताकि जो है वो अंदर जा सके। और ऐसे नैब की जानिब से मजीद नफरी भी मंगाई गई है। ये भी बताइएगा आरिफ कि हमजा शहबाज ने तो अभी प्रेसर भी करनी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी थी, और अब ये कार्रवाई क्या लग रहा है आपको? जी, क्योंकि अभी फौरी तौर पर वो वहाँ पर मौजूद है, जैसे ही मीडिया क्योंकि वहाँ पर पहुँच चुका है और यहाँ पर कुछ देर बाद ही हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ दोनों ही बाहर आके टॉक भी करेंगे। दूसरी साइड पर आप देखें तो वहाँ पे नैब की टीम खड़ी है और एक साइड पर जो है यहाँ पर मियां शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ जो है वो घर के अंदर मौजूद है। लेकिन दोनों साइडों से अब फिलहाल जो है नैब की टीम जो है आला अफसरान से परमिशन ले रही है और ये बात बता रही है कि हम अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर से उन्हें जो है वो सिक्योरिटी गार्ड जो है वो दाखिल होने नहीं दे रहे, जिसकी वजह से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और दोनों परेशानी का सामना करना पड़ा है। आरिफ मलिक, ये भी बताएगा, आपने जैसे कि कहा कि नैब की टीम ने कहा कि हमारे पास वारंट मौजूद है, जबकि नून लीग के तर्जुमान का दावा यह है कि बगैर वारंट कार्रवाई की जा रही है। तो आपने क्या नैब की टीम से किसी से बात हुई कि उनके पास वारंट मौजूद है? जी, इस वक्त जो टीम के जो सरबराह लीड कर रहे थे वो वहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन जो 7-8 अफराद उनके साथ थे उनका कहना है कि जो हमारे लीडर थे उसके पास मौजूद थे। लेकिन क्योंकि नून लीग का भी ये दावा है कि इनके पास कोई वारंट मौजूद नहीं थे, ये बगैर वारंट के जो है घर के अंदर की तलाशी लेना चाह रहे थे। जब हमने पूछा कि आपके पास किस चीज़ की तलाशी लेना चाहते हैं तो उन्होंने कहा कि हमें एसेट बियॉन्ड केस के अंदर जो मजीद डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर पहुंचे हैं। हमें कुछ चीजें चाहिए जो हमें नहीं मिल रही, जो इनके पास है, ये वो देना नहीं चाह रहे। लेकिन हमजा शहबाज का बार बार यही कहना था कि जब हाई कोर्ट का एक हुक्म है कि इन्हें एक हफ्ता पहले जो बताना होगा, गिरफ्तारी करनी भी है तो इन्हें बताना होगा। लेकिन इस तरह की अगर गिरफ्तारी भी करनी है अगर हमजा शहबाज की या शहबाज शरीफ की तो उन्हें बताना होगा। लेकिन ये बताए बगैर ही नैब की टीम जो है वो 96H मॉडल टाउन पहुंची है और वहाँ पर एक गंभीर सूरत नजर आ रही है, जहाँ पे दोनों साइड पे क्योंकि सिक्योरिटी जो है शहबाज शरीफ की भी हमजा शहबाज की वो घर के बाहर ही मौजूद थी, जिसकी वजह से उन्हें मजम्मत का भी सामना करना पड़ा है। एक जानिब नैब की टीम है, दूसरी जानिब नून लीग के तर्जुमान का दावा है कि बगैर वारंट कार्रवाई की जा रही है। अदनान आदिल ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। जी अदनान आदिल, बताइएगा कि नून लीग के तर्जुमान ने दावा किया है कि बगैर वारंट कार्रवाई की जा रही, क्या कहेंगे? जी, अगर बगैर वारंट गिरफ्तारी की जा रही है फिर तो उस पर यकीनन सवाल उठेंगे और इन्हें कानूनी तरीक़ेकार जो है वो फॉलो करना चाहिए। लेकिन नैब का भी ये मौक़िफ़ है कि हमारे पास वारंट हैं और जो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के घर हैं मॉडल टाउन में, इनको वो चीफ मिनिस्टर हाउस के तौर पर इस्तेमाल करते रहे हैं। अहम सरकारी दस्तावेजात और जो बड़े बड़े ठेके दिए गए उनके कागजात और उनसे मुताल्लिक इनके जो उसमें शराकतदारी थी और जो ठेकेदारों से ताल्लुकात थे उसके सबूत और इनके जो पर्सनल प्रॉपर्टी है, जो वेल्थ है और जो ऑफशोर वेल्थ है, उसकी बहुत से कागजात जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। इसीलिए उन्होंने ये कार्रवाई की है। और अगर ये कहें कि जी वहाँ पर औरतें मौजूद हैं तो ये औरतों को अलग कर लें, एक कमरे में अलग ले जाएं और नैब को अपना काम जो है वो करने दें। इस तरह की बहानेबाजी से तो कोई फायदा नहीं होगा इनको। अदनान आदिल साहब, ये भी बताइएगा कि नैब ने शहबाज शरीफ के घर पे छापा मारा, नवाज शरीफ की अगर हम इस सिचुएशन पे देखें कि अभी वो बाहर हैं जेल से, इस टाइम पे छापा मारने का क्या मकसद हो सकता है? मकसद यही हो सकता है कि इनके जो करप्शन केसेस हैं उनको परसू करने में नैब बहुत सीरियस है और किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं देना चाहती। ये जो तासुर दे रहे हैं कि कोई बहुत हमारी बड़ी डील हो गई है और हमारे जो है मामला तय पा गए हैं, ये बात सही नहीं है।
नैब कानून के मुताबिक इनके तमाम असासों की छानबीन कर रही है और जो उनकी मुबैना करप्शन है, मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग है, उसके सबूत और शवाहिद हासिल करने की कोशिश कर रही है। नैब एक खुद मुख्तार आईनी इदारा है और उसके पास मुकम्मल कानून में इख्तियार है कि वो जिन लोगों पर ये बातिल नज़र में शक है कि उन्होंने बड़े बड़े ठेकों में करोड़ों अरबों रुपए बनाए हैं गैर कानूनी तौर पर और उनको मुल्क से बाहर भेजकर गैर कानूनी जायदादें बनाई हैं, उनकी छानबीन का नैब को मुकम्मल इख्तियार है और उसी इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए ये कार्रवाई की गई। ठीक है अदनान आदिल साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। नैब लाहौर की टीम ने ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के घर पर छापा मारा है। समा के नुमाइंदे रियाज अहमद मॉडल टाउन में शहबाज शरीफ के रिहाइशगाह के बाहर मौजूद हैं। शहबाज, बताइएगा, कुछ पता लगाया जा सका है कार्रवाई क्यों की गई है? जी बिल्कुल, चूँकि हमजा शहबाज पर के खिलाफ एक इंक्वायरी चल रही थी आमदन से ज़ायद असासों पर, उसी इंक्वायरी को के सिलसिले में जो है वो नैब की टीम यहाँ पर पहुंची है। नैब के जो एहलकार हैं वो यहाँ पर इस वक्त उनके घर के अंदर मौजूद हैं। जो नैब हुकाम का ये दावा है कि शायद वो उनको यहाँ से गिरफ्तारी के लिए आए हैं, लेकिन अभी तक चूँकि नैब की टीम अंदर है, उन्होंने छापा मारा है और मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं वो उस वक्त उनके घर के बाहर मौजूद हैं। हमजा शहबाज भी जो है वो घर के अंदर हैं, तो इसलिए अभी नैब की टीम जब तक निकलेगी नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता वो उनको गिरफ्तार करके लाते हैं या नहीं लाते। लेकिन ये जरूर है कि नैब की टीम ने छापा मारा और नैब की टीम इस वक्त हमजा शहबाज के 196 में उनके घर पर मौजूद है। अच्छा रियाज, ये बताइएगा, कहा यह जा रहा है कि पेपर्स, कुछ डॉक्यूमेंट्स की छानबीन के लिए छापा मारा गया है और कुछ कहे जा रहा है कि गिरफ्तारी के लिए छापा मारा जा रहा है। क्या सूरत हाल है? क्या लग रहा है कि नैब की टीम वहां मौजूद है? क्या डॉक्यूमेंट्स या कोई इंकशाफात के लिए छापा मारा गया है? जी बिल्कुल, जो अभी जो नैब के लोगों का ये कहना है, नैब के लोगों का ये कहना है कि इनकी गिरफ्तारी, जो हमें बाहर जिनका एक एहलकार मिला है उनका ये कहना है कि वो उनकी गिरफ्तारी के लिए यहाँ पर आए हैं। लेकिन बाद नैब के एहलकारों को ये भी कहना है कि वो छानबीन के सिलसिले में उन्होंने छापा मारा है, लेकिन जो नैब का यहाँ पर एहलकार एक मौजूद था, उनसे बात हुई तो उनका कहना हम गिरफ्तारी के लिए आए हैं। अब गिरफ्तारी के लिए अगर वो आए हैं तो चूंकि इस वक्त वो घर के अंदर मौजूद हैं, अगर गिरफ्तारी के लिए आए हैं तो फिर जाहिर है वो उनको गिरफ्तार करेंगे। अगर वो छानबीन के लिए आए हैं तो जो इनको वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे उनकी वो छानबीन के लिए मुख्तलिफ जगहों को चेक करेंगे, वहाँ से वो डॉक्यूमेंट्स लेंगे। अभी कार्रवाई चल रही है, देखना यह है कि इस हवाले से छापा मारा गया है। इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद जुबैर, रहनुमा नून लीग, उनसे बात करेंगे। बताइएगा कि कहना यह है कि नैब की टीम ने बगैर वारंट कार्रवाई की है, क्या कहेंगे? ये तो नैब कोई भी हैरान नहीं होगा इस बात से। अभी भी आपके नुमाइंदे भी अभी बता रहे थे कि एक नैब के नुमाइंदे कुछ और बात कर रहे थे, दूसरे एहलकार कुछ और बात कर रहे थे। तो अभी तक तो उन्होंने कोई ऐसी चीज शो नहीं की है कि वो लेजिटिमेट तरीके से आए हैं। और इतनी बड़ी कार्रवाई करने से पहले उनको कानूनी कार्रवाई पूरी करनी चाहिए और हमें शदीद इख्तिलाफ है इस तरीके से नैब की कार्रवाइयों का। मोहम्मद जुबैर साहब, केसेस तो ऑलरेडी चल रहे थे, अब ऐसे में नैब का ये मौकिफ भी सामने आया कि उनके पास वारंट थे। नहीं तो थे तो दिखा दे ना, मतलब वहाँ मीडिया भी उनको ये जाहिर है पता है कि मीडिया कवर करेगा, पूरी पाकिस्तानी कौम फॉलो करेगी, तो उनको ज्यादा एहतियात करनी चाहिए कि जो भी वो पहला कदम उठाएं तो वो तमाम कानूनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरी करके उठाएं, ताकि वो जब जाएं तो कोई किसी को इतराज ना हो। इतराज तो हमें ये हो सकता है कि उन्होंने कुछ नहीं किया था और वो सारी चीजें, बट पहले तो कानून के हवाले से जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसको तो पूरी करें और अभी बता दें मीडिया को, देखें जी ये हमारे पास वारंट ऑफ अरेस्ट हैं या जो भी है, या छापा मारने के लिए हम आए हैं। तो जब वो आपस में ही उनकी टीम में डिसएग्रीमेंट है कि जी वो आए किस लिए हैं, तो जाहिर सी बात है हम तो इतराज करेंगे ही। ठीक है जुबैर साहब, नैब की जानिब से कहा गया कि हमजा शहबाज से आमदन से ज्यादा सासों के केस में तहकीकात करनी है। नवाज शरीफ ऑलरेडी जेल से बाहर हैं तिब्बी बुनियादों पर, और अब नैब की जानिब से मौक़िफ़ बना कि हमजा शहबाज से आमदन से ज्यादा सासों के केस में तहकीकात करनी है, क्या कहेंगे? ये जो कानून है ना, इसमें तो मुझे और आपको और पूरे पाकिस्तान को नैब अरेस्ट कर सकती है और 6, 7, 8 महीने रख के उसके बाद कहे कि जी हमारा जो तरीक़ेकार था वो सही नहीं था। तो अब ये तो अल्लाह बेहतर जानता है उनके क्या किस बुनियाद पर वो इस राय पर पहुंचे हैं कि आमदन से ज़्यादा असासे हैं। वो कौन से असासे हैं जो उन्होंने अपने टैक्स रिटर्न्स में या वेल्थ स्टेटमेंट में नहीं शो किए थे, जो जिसकी इतला नैब को मिली है। एक पाकिस्तान में अजीब तरीक़ेकार है, एक इदारा है FBR
जो कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, जो देखता है और समझता है और उसके बाद तहकीक करने के बाद किसी को क्लीन चिट देता है। उसके बाद नैब आ जाता है, नैब कहता है कि जी असासे जो हैं वो ज्यादा हैं। भाई क्या बुनियाद क्या है उनके पास, किन बुनियादों पे किया गया है? बिल्कुल ज़ुबैर साहब, आपने समा को वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे MPA समीउल्लाह इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। रुका हुआ है, आपको पता है 23 मार्च को भी कारकुनों की एक कॉल थी जिसको फिर मियां नवाज शरीफ साहब ने जेल के अंदर से ये पैगाम दिया कि कोई एहतजाज ना किया जाए। लेकिन बताएं, मैं पाकिस्तान के लोगों से सवाल करता हूं कि इस तरह की सूरत हाल कि आज मियां शहबाज शरीफ का घर महफूज नहीं है, गेट है मेरे पीछे, अगर यही सूरत हाल हुई तो हम अपने कारकुनों को कितनी देर तक रोक सकते हैं? पाकिस्तान के अवाम तो पहले ही बेताब हैं, महंगाई के हाथों, दीगर जो चीज़ें हैं उनके हाथों के पाकिस्तानी कौम के रहनुमा जो है वो सड़कों पे आके इस कठपुतली वज़ीर आज़म, इस सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को इक़्तिदार से बाहर निकालें। इंशाल्लाह हम वेट कर रहे हैं, हम अंदर की सूरत हाल का भी जायज़ा ले रहे हैं, हम यहाँ खड़े हैं और लोग भी आ रहे हैं। हम किसी सूरत अपनी MPA समीउल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और ये भी बता रहे थे कि अगर ही यही सूरत हाल रही तो अपने कारकुनों को कैसे रोक सकते हैं। इस सूरत में हम बाहर खड़े हैं और नून लीग के कायदीन भी खड़े हैं और कारकुनान की भी बड़ी तादाद इस वक्त शहबाज शरीफ की रहाइश गाह के बाहर मौजूद है। एक जानिब नैब की टीम जो है कार्रवाई कर रही है, दूसरी जानिब घर के अंदर शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ मौजूद हैं। इसी हवाले से बात करेंगे रियाज अहमद से। रियाज अहमद, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है, नैब की टीम कार्रवाई कर रही है और घर में कौन कौन मौजूद है? जी, अभी तक जो हमें बताया गया है कि जो घर के अंदर जो हैं वो हमजा शहबाज भी मौजूद हैं और दीगर लोग भी मौजूद हैं और पुलिस की नफरी भी यहाँ पर आ चुकी है और नैब की टीम भी इस वक्त घर के अंदर है। लेकिन अब देखना ये है क्योंकि जो नैब के यहाँ का अहलकार हैं उनका ये तो दावा है कि वो उनको गिरफ्तार करने आए हैं, लेकिन अब देखना है ये कि वो उनको गिरफ्तार करके लाते हैं या नहीं। और दूसरी तरफ जो मुस्लिम लीग नून के जो कारकुन हैं वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी तादाद भी बढ़ रही है और उसके अलावा जो मुस्लिम लीग नून के जो कुछ कारकुन हैं वो अंदर भी एक आध गए हैं देखने के लिए कि क्या नैब की टीम की कार्रवाई कर रही है। हमजा शहबाज इस वक्त घर के अंदर हैं और नैब की टीम भी अंदर है। नैब की टीम का ये कहना है कि वो अपनी जो कानूनी कार्रवाई है वो मुकम्मल करेंगे, उसके लिए उन्हें किसी किस्म की रुकावट का कोई डर या खौफ नहीं है, वो अपनी कार्रवाई पूरी करेंगे। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के कारकुनों का ये कहना है कि ये नैब की एक तरफा कार्रवाइयाँ हैं और ये ऐसा कानून है जिसको जिस वक्त चाहे जहाँ से मर्जी गिरफ्तार कर ले या जहाँ चाहे बगैर वारंट के घर छापा मार दें। उनका ये कहना था कि पहले वो बताते कि वो इस घर में छापा मारने आ रहे हैं, जब वारंट कोई देते गिरफ्तारी का, अगर वाकई वारंट गिरफ्तारी के लिए आए हैं तो, लेकिन उनका ये कहना है कि कोई चीज़ ऐसी नहीं दी गई और इसी वजह से उनका ये कहना था कि मुस्लिम लीग नून के कारकुन जमा हो रहे हैं, वो अपने कारकुन को कब तक रोकेंगे अगर यही सिलसिला जारी रहा तो। एक जानिब कारकुनान जमा हो रहे हैं, दूसरी जानिब नैब जो है कार्रवाई कर रही है और नैब ने ये कहा है कि हम पूरी तफ्तीश के बाद ही यहाँ से जाएंगे, हमें किसी चीज़ का डर नहीं है और कारकुनान की बड़ी तादाद इस वक्त मौजूद है। आपको इस हवाले से गाहे बगाहे आगाह भी करते रहेंगे। इस वक्त नैब जो है कार्रवाई करने शहबाज शरीफ के घर के बाहर मौजूद है। नैब लाहौर की टीम ने ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के घर पर छापा मारा है। टीम अब भी घर के अंदर मौजूद है। समा के नुमाइंदे रियाज अहमद मॉडल टाउन में शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद हैं। रियाज, बताइएगा इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है और क्या नैब ज़राए की जानिब से कुछ बताया गया है? कितनी लंबी कार्रवाई हो सकती है ये? जी, ऐसा है कि हमजा शहबाज के खिलाफ चूँकि नैब में आमदन से ज़्यादा सासों का केस जो था उसकी तफ्तीश जारी थी और उसी सिलसिले में नैब की जो टीम है वो यहाँ पर उनके रिहाइशगाह पहुँची और यहाँ पर छापा मारा है। 30 से 40 के करीब नैब के जो एहलकार हैं वो यहाँ पर आए हैं, गाड़ियों पर आए हैं और उन्होंने घर के अंदर छापा मारा। इस वक्त घर के अंदर तमाम लोग मौजूद हैं नैब के। इस वक्त हमजा शहबाज भी घर के अंदर मौजूद हैं और दीगर लोग जो घर के हैं वो भी घर के अंदर मौजूद हैं। नैब की टीम जो है वो ना सिर्फ घर के मुख्तलिफ जगहों की जो है वो तलाशी भी ले रही है, बल्कि जो हमें बताया गया कि नैब के जो एहलकार हैं, जो तफ्तीशी टीम है, जो जिन्होंने छापा मारा वो इस वक्त हमजा शहबाज से बातचीत भी अंदर कर रही है। चूँकि अभी भी दोबारा जब कन्फर्म किया गया तो उनका यही कहना था कि वो उनकी गिरफ्तारी के लिए आए हैं और उन्हें गिरफ्तार करके ही लेकर जाएंगे। लेकिन अब ये कहाँ तक मुमकिन है, चूँकि मुस्लिम लीग नून के कारकुन भी आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर जमा होना शुरू हो गए हैं। उनका ये कहना था कि वो इस तरह अपने लीडर को यहाँ से नहीं जाने देंगे। बगैर वारंट के यहाँ पर छापा मारा गया है, ना ही कोई वारंट गिरफ्तारी उनके लिए जारी किए गए हैं। चूँकि पहले बताना चाहिए था वारंट गिरफ्तारी के लिए और लेटर जारी करना चाहिए, वारंट गिरफ्तारी जारी करने चाहिए थे, लेकिन वो भी नैब ने नहीं जारी किए। इसलिए उनका ये कहना था
कि ये नैब की तरफ से बगैर कोई वजह बताए उनके घर के अंदर नैब की टीम दाखिल हुई है, इसलिए मुस्लिम लीग नून के कारकुन यहाँ पर जमा है। लेकिन नैब के जो एहलकार हैं, जो नैब की जो टीम है, वो जिन्होंने छापा मारा है वो उस वक्त घर के अंदर मौजूद हैं। कुछ लोग जो हैं वो घर के अंदर तलाशी भी ले रहे हैं, जो कुछ उनको डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो उनकी जो है वो तलाशी ले रहे हैं, जबकि कुछ लोग जो हैं वो हमजा शहबाज के पास बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत भी कर रहे हैं और कुछ हमजा शहबाज शरीफ से बातचीत की जा रही है, तहकीकात की जा रही हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है रहनुमा मुस्लिम लीग नून मलिक अहमद ने। मलिक अहमद, बताइएगा कि जैसे कि कहा जा रहा है कि बगैर वारंट कार्रवाई की गई है, जबकि नैब की जानिब से दावा किया जा रहा है कि हमारे पास वारंट मौजूद है, क्या कहेंगे? देखिए, नैब ने कोई वारंट या कोई लॉफुल अथॉरिटी कम्युनिकेट नहीं की। अगर उन्होंने सर्च करनी थी तो सर्च करने के लिए इस तरह से इंट्रूड नहीं करना चाहिए था। उनको वो आके सर्च वारंट अपना कम्युनिकेट करना चाहिए था। वो अपनी लॉफुल अथॉरिटी बताते कि ये है, तो फिर कोई उनके साथ ताउन पहले कब नहीं किया गया? नैब ने जब जो मांगा दिया, तो ये तो उन्होंने एक इलीगल एक्ट किया है कि मुझे विदाउट कम्युनिकेट किए मेरे घर के अंदर दाखिल हो गए और जाके उसकी तलाशी लेनी शुरू कर दी है, एक हरेसमेंट करा दी है। अगर उनको कोई सर्च मकसूद थी तो उसके लिए लीगली एक सर्च वारंट है। क्या कोई नैब मुल्क के कवानीन से बिल्कुल मुबर्रा है और उनकी अथॉरिटीज जैसे चाहें लोगों के घरों की चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल कर सकती हैं? ऐसा कतई नहीं है। नैब एक लॉ के तहत रेगुलेट होता है, चाहे वो जितना भी ड्रैकोनियन है, लेकिन सर्च के लिए उनके पास जो अथॉरिटी उनकी मौजूद थी वो उनको कम्युनिकेट करनी चाहिए। नैब ने इनफैक्ट वहाँ पे जाके जो वहाँ पे सिक्योरिटी के और स्टाफ के लोग थे उनको एब्सोल्युटली हरेस किया, घर के अंदर दनदनाते हुए दाखिल हो गए जैसे किसी दहशतगर्द के घर के अंदर दाखिल होते हैं। ये कंडक्ट, ये रवैया, ये तरीक़ाकार किसी तौर पर भी लीगल, कानूनी, किसी लॉफुल अथॉरिटी के बगैर है। ये उन्होंने गलत किया है जो किया है। अगर उनको कोई गिरफ्तारी मकसूद थी तो आके बताते कि हमने गिरफ्तार करना। ये कौन सा किसी एब्सकॉन्डर के घर पे रेड कर रहे थे कि कहीं वो भाग ना जाए वहां से? ये मतलब क्या एक्ट है? लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, हमारी पार्टी के वो लीडर हैं, प्रेसिडेंट PMLN के घर के ऊपर ये रेड किया जा रहा है। तो अगर नैब ने उनको गिरफ्तार ही करना था तो ये कौन सा कोई ऐसा बात कम्युनिकेट की जा सकती थी कि बता देते किस लिए? अब हम बिल्कुल वी आर इन एयर, हमें नहीं पता कि ये कैसे क्या सिर्फ सर्च करने के लिए गए हैं या गिरफ्तार करने के लिए गए हैं। मलिक अहमद साहब, हमारे नुमाइंदे का कहना है कि नैब की जानिब से ये भी कहा गया कि हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए आए हैं आमदन से ज्यादा सासे रखने पर। अब तो कारकुनान भी रहायशगाह पर पहुंचना शुरू हो गए। आपको क्या लगता है कि गिरफ्तारी मुमकिन है? देखिए, उन्होंने कुछ हमें बताया नहीं, हम कुछ कह नहीं सकते कि वो गिरफ्तार करने आए हैं या सर्च करने आए हैं। इस चीज का हमें बिल्कुल आइडिया नहीं है। अगर कुछ कम्युनिकेट किया होता तो आपको बताते, तो बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से घर के अंदर घुसे हैं और ऐसे जैसे दंदनाते हुए जाते हैं। ऐसे लीगल अथॉरिटीज ऐसे थोड़ी करती हैं, लॉफुल अथॉरिटीज ऐसे थोड़ी करती हैं। लीगल अथॉरिटीज हैं, यकीनन नैब का काम तहकीकात करना है। मलिक अहमद साहब, लेकिन नैब की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हमारे पास वारंट मौजूद है, जबकि अगर वारंट जो है वो उन्होंने तावीज बना के गले में डालना है। आके बताते, कम्युनिकेट करते ये वारंट है तो हमारी ये सारी बहस ही ना रह जाती। किसको बताया उन्होंने कि उनके पास वारंट है? अभी कल इनके खिलाफ अभी इस्लामी नजरियाती काउंसिल को आके बताना पड़ा कि डिग्निटी ऑफ मैन को ये वायलेट नहीं कर सकते जब तक कोई प्रूवन गिल्टी ना, उसको हथकड़ी नहीं लगा सकते। तो व्हाट टू टॉक ऑफ के लोगों के घरों पर छापे मारे जा करिए। अगर इन्होंने सर्च करनी थी तो सर्च वारंट तय कराते। इनके इन इकदाम के नतीजे में लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। हाईकोर्ट के फैसले नैब के खिलाफ चार्जशीट्स हैं। ये नैब लोगों की हुकूमतें गिराने, हुकूमतें बनाने, लोगों की जबानें बंद कराने, लोगों सियासी मुखालिफिन को दबाने के लिए इमरान खान की हुकूमत इसके सिवा और कुछ नहीं कर रही, यही कर रही है। ये नैब एज अ टूल यूज हो रहा है। ये तो लोगों के साथ इससे बढ़कर और क्या ज्यादती होगी कि आप मेरे घर में दाखिल हो जाएं? इससे बढ़कर क्या ज्यादती होगी? बगैर बताए घर में दाखिल हो गई नैब। बहुत शुक्रिया मलिक अहमद, आप हमें वक्त दे रहे थे। आपको बताते चले शहबाज शरीफ के घर पर नैब ने छापा मारा है और नैब की 30 से 40 से अफसरान जो थे उन्होंने नैब की टीम में मुश्तमिल थे और उन्होंने छापा मारा है शहबाज शरीफ के घर और आमदन से ज़ायद असासा जात रखने के खिलाफ हमजा शहबाज के हवाले से पूछगीछ हो रही है और तहकीकात जारी हैं, डॉक्यूमेंट्स के हवाले से तहकीकात जारी हैं। जबकि नैब की टीम का ये कहना है कि हमारे पास वारंट मौजूद थे, जबकि मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान जो है उनका ये बताना है कि वारंट के बगैर कार्रवाई की गई है।